Now I'm here again to share the topic square roots under the chapter square and square roots for class 8. So without wasting time, let's discuss the topic square root. What is a square root? So the inverse operation means the opposite operation of addition is subtraction and the inverse operation of multiplication is division. Similarly, the inverse operation of squaring is square root. Okay, so means inverse operation of squaring is square root. What does it mean? मीन्स कि अगर हमने किसी भी नंबर में कुछ नंबर ऐड कर दिया, ओके, मीन्स 4 plus 3 is 7. So inverse means when we add 3 in 4 we get 7. So how to get 4? When we subtract 3 from 7. जब हम 3 में से 7 को subtract कर देंगे तो हमें 4 मिल जाएगा. That is known as inverse operation. Okay. Similarly for division also. So that's why I am telling the inverse operation of squaring is the square root. Means inverse operation, अगर squaring के inverse operation को हम देखें तो वो क्या होता है? Square root होता है. So for example I am going to discuss an example. Square of 4. Square of 4 is 16. Square of 4 is 16. So this is known as squaring. This is known as squaring. If the teacher will ask you, अगर किसी मतलब टीचर जब आपसे पूछते हैं 16 is the square of which number, मीन्स अब आपको अगर ये याद है तो आप बोल सकते हैं यस मैम 4 और सर 4, ठीक है, मीन्स 16 जो है 4 का स्क्वायर है. 1024 is the square of which number? 1024 याद ही नहीं है. So the method which tells us which number's square is 1024 is square root. Okay, is what is square root. This is the symbol which we use to find the square root of any number. So let's discuss the procedure. We have two procedures or two methods to find the square root of any number. We have two methods to find the square root of any number. The first one is prime factorization. Prime factorization method, and the second one is division method. These two methods which help us to find the square root of any number. So what is prime factorization? I am going to find the square of 36. Square root of 36. Okay, because it's easy. But first of all we discuss the easy one, because जब हम छोटी चीजों को कहते हैं ना, for example before writing an apple and elephant first we learn the alphabets. Similarly हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम से पहले अगर हम छोटी प्रॉब्लम्स को कंसीडर करके अगर हम अपना कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं और देन फिर हमारा कैलकुलेशन वर्क करता है और हमारे फिर आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े बड़े होते हैं वो भी सॉल्व होते हैं. ओके, सो लेट्स focus on the board. We want to find the square root of 36. So what we will do? Prime factorization. What is a prime factorization? Means we write the given number in prime factors form. Okay, means the product of prime factors must be given equal to the given number. Means 36 है, हम ऐसे छोटे छोटे नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में इसको लिखें जिनका प्रोडक्ट 36 हो जाए. So this method will help us to write the factors. So what we will do? 2 1 are 2, 8 are 16, again 2 9 are 18, and 9 is not divisible by 2, so we will move to the next prime number, that is 3. So 3 3s are 9, and then 3 1s are 3. Okay, then how to show square root of 36? We will write the prime factorization of 36 here. So 2 into 2 into 3 into 3. It's clear? 2 times 2 here, and 2 times 3 is also here. Then after writing the prime factorization, we have to start making a pair. हम पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं 2 2. ओके,
Then I discussed this point under the video basic concept of square numbers. मीन्स ये कंसेप्ट मैं आपसे शेयर कर चुका हूं, बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्क्वायर नंबर्स की अगर हमारे पास में पेयरिंग नहीं बनती तो परफेक्ट स्क्वायर ना होता. अगर पेयरिंग बन रही है इट मींस द गिवन नंबर इज द परफेक्ट स्क्वायर. ओके, सो व्हाट वी विल डू, वी विल राइट ईच नंबर फॉर ईच पेयर. हम हर पेयर के लिए नंबर लिख लेंगे. तो यहाँ पे 2 का पेयर 2, देन फॉर दिस पेयर वी हैव टू राइट 3. व्हाई? बिकॉज इट इज द पेयर ऑफ 3. या फिर दूसरी लैंग्वेज अगर हम इन अदर हैंड और इन अदर लैंग्वेज वी कैन से दैट हर पेयर के लिए जितने नंबर का पेयर है, जिस नंबर का पेयर हम वो नंबर एक बार लिख लेंगे. अगर 9 into 9 है तो हम 9 लिखेंगे, बट 9 into 9 नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज 9 इज नॉट अ प्राइम नंबर. नाउ सो 2 3s are 6. So the square root of 36 is 6. The square root of 36 is 6. This is the way to find the square root of any number by prime factorization method. We discuss one more example. Find the square root of 1024 by prime factorization method. Square root of 1024 by prime factorization method. So what we will do, we will write the prime factorization of 1024. So 1024, so 2 5s are 10, 2 1s are 2, 2 2s are 4, again it's 2, so 2 2s are 4, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 6s are 12, 2 4s are 8, again 2 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6s are 8, 2 6s are 12, then 2 8s are 16, again 2 4s are 8, again 2 2s are 4, again 2 1s are 2. Okay, means we have only 2 in this prime factorization. So let's square root of 1024. So how many times 2 comes here? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 times. So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Then after writing the prime factorization, second step is to make a pair. First one pair, second pair, third pair, fourth pair and fifth pair. So how many pairs we have? 5, and each pair has 2. So no need to wasting the time, just write 1 2 3 4 5 times 2. Then we start the product. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Okay, so 32 is the square root of 1024. This is the way to find the square root by prime factorization method. Let's we move to find the square root of division method. And the problem based on prime factorization method I discussed, means prime factorization method पे based जो आपकी word problem है I discussed, मैं डिस्कस कर चुका हूं. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन बेस पे कैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है. फॉर एग्जांपल 32 is the perfect square or not? So no, in this way we will not ask the teacher by which number we used to multiply 32 to make it a perfect square. मीन्स हम 32 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. क्या बोला? मल्टीप्लाई बोला. So what we will do? We will write the prime factorization. 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16, 2s are 32. ठीक है. Then क्या हुआ? ये 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर बना, इस 2 का पेयर नहीं बना. So what we will do? We will make the pair of 2. So by multiplying 2. So what we did? We multiply 32 by 2 to make it a perfect square. Okay. So our answer is 2. Then we can write, hence we use 2 to multiply 32 to make it a perfect square. In the same question, by which number we have to divide 32 to make it a perfect square. अब वो कौन सा, अच्छा smallest भी जोड़ दिया जाता है, ठीक है ना. Yeah, so no need to confuse. So by which smallest number we divide 32 to make it a perfect square. Means इस 32 को कौन से छोटे नंबर से हम डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए. So
हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिख चुके थे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, थर्ड वन इज इनकम्प्लीट, मीन्स दिस 2 क्रिएट्स प्रॉब्लम। अगर ये 2 ना हो तो हम ये बता सकते हैं ना परफेक्ट स्क्वायर है, क्यों? क्योंकि पेयर्स बन रहे हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल डिवाइड बाय 2। अब जिस 2 से डिवाइड करते हैं 2 कट जाएगा, वही 2 जब कटेगा तो ये हमारा प्रॉपर पेयर बन गया प्राइम फैक्टर्स के। सो सिमिलरली वी डिवाइड इट आल्सो बाय 2। So 2 1 2, 2 6 12, and we know that 16 is the square of 4. So this is the question based on prime factorization method. Okay, ये वर्ड प्रॉब्लम होती है और रियली ये वर्ड प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, सो लेट्स डिवीजन मेथड। How to find the square root of any number by division method? Okay, before division method, I want to discuss some points and some rules. We have 2 rules. Okay, so let's before division method, I want to share the rules first. It's mentioned. No problem. 1 square is the square of 1, 1, the square of 2, 4, the square of 3, 9, the square of 4, 16, and the square of 5, 25, the square of 6, 36, the square of 7, 49, square of 8, 64, square of 9, 81, and square of 10 is 100. Okay, and you must to learn the square up to 20 तक के स्क्वायर्स जरूर लर्न होने चाहिए। सो लेट्स, व्हाई आई हैव रिटन दिस, मैंने क्यों लिखा? 2 क्वेश्चंस आते हैं ओके हमारे पेपर में। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द पॉसिबल यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ दीज, मींस कुछ इस तरह से क्वेश्चन होता है। ओके, एग्जांपल, जैसे हम ये बोल सकते हैं रूल 1, it's not a rule, just okay, rule 1, it is possible digit पूछते हैं आपसे, possible digits, possible digits means अगर आपसे बोल दिया गया 3 2 4, 3 2 4, 3 2 4 is the square of 90. Okay, 19, 8. So 3 2 4 is the square of 18. 3 2 4 is the square of 18. So but ये छोटा नंबर था या फिर हमें 20 तक लर्न है, सो पॉसिबल यूनिट डिजिट 8 हो गई हमारी। ठीक है, अब 8 के अलावा और भी क्या हो सकता था? हम इसको 2 भी बोल सकते थे, हमने 18 नहीं लिखा। ठीक है, हमने रब कर दिया। सो 8 और 2 मींस फिर वही बात, दे आर आस्किंग फॉर पॉसिबल यूनिट डिजिट। और पॉसिबल बोल रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस स्क्वायर रूट, वो आपसे डायरेक्ट यूनिट डिजिट नहीं पूछ रहे हैं, वो पूछ रहे हैं पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या होगी। सो इधर 8 और 2। क्यों? क्योंकि जब हम 8 का स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें यूनिट प्लेस पे क्या मिलता है? 4। सॉरी, 8 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा? 4। और जब हम 2 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या मिलेगा? 4। ठीक है, मींस ऐसे नंबर जिनका यूनिट प्लेस 4 हो और उनका हम स्क्वायर रूट निकालें तो वो या तो 2 यूनिट प्लेस होगा उसका या फिर 8 होगा। इट्स गेटिंग क्लियर नॉट? फॉर एग्जाम्पल 2 2 5, so the possible unit digit after finding the square root of 2 to 5 is only 5. Why? Because 5 सिर्फ एक जगह आता है और कहीं नहीं आता। ठीक है, सो सिमिलरली इसी तरह से 9 1 कब कब मिलता है? 1 या तो हमें कब मिलेगा, या तो फिर वो 9 यूनिट प्लेस पे हो या फिर 1 हो। ओके, सिमिलरली वी गेट 4, ईदर इट्स 2 और 8, या तो 2 हो या 8 हो, तो उसका स्क्वायर करने पे हमें 4 मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली 3 मीन्स 3 and 7, and the last one is 4 and 6,
4 और 6 के साथ में होगा 5 एंड 10 आर डिफरेंट। मीन्स 5 अगर यूनिट प्लेस पे है तो उसके स्क्वायर में भी यूनिट डिजिट पे 5 होगा, और नंबर है उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो किसी नंबर का स्क्वायर नंबर, ठीक है, अगर उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 है तो उसका स्क्वायर रूट में भी यूनिट डिजिट 5 ही होगा। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 1024, what is the possible unit digit? 1024 what is the possible unit digit? हमने देखा यूनिट डिजिट पे क्या है 4, यूनिट डिजिट पे क्या आया 4। मींस जब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो या तो हमें यूनिट डिजिट पे 2 मिलेगा और 8 मिलेगा, दैट्स इट, ईदर 2 और 8, नो अदर नंबर। व्हाई 4 is here and 4 is here, ठीक है। अब अगर ये बात आपको लर्न नहीं होती है सो कौन कौन से नंबर से भाई 4 होगा, व्हाट टू राइट 1 मिलेगा, तो 2 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर नहीं पॉसिबल नहीं होगा। नाउ देन 1 4 5 6 एंड 9 एंड 0, ठीक है। सो मीन्स 1 कब कब पॉसिबल होगा, जब वो 1 हो और या फिर 9। 4 कब होगा, जब वो 2 हो या 8 हो। 5 कब होगा, सिर्फ 5 पर होगा, स्पेशल केस हो गया। 6 कब होगा, जब वो 4 होगा या फिर 6 होगा। 9 कब होगा, जब वो 1 होगा, सॉरी जब वो 3 होगा और 7 होगा। ओके, एंड स्पेशल केस हो गया, ठीक है ना। अब अगर आप कह रहे टेक्निक की ही बात है, 1 plus 9 is 10, 2 plus 8 is 10, 4 plus 6 is 10, 3 plus 7 is 10। मीन्स अगर 1 के यूनिट डिजिट पे क्या मिल रहा है 1, इसका मतलब 1 plus 9 is 10, इसका मतलब 9 पे भी यूनिट डिजिट 1 मिलेगा। 2 का स्क्वायर फाइंड किया, यूनिट डिजिट कितना मिल रहा है 4, 2 का स्क्वायर फाइंड किया, यूनिट डिजिट पे कितना मिल रहा है 4, ठीक है। मीन्स 2 plus 8 is 10, और अगर हम 8 का स्क्वायर फाइंड करेंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। ओके, सो इट्स जस्ट ऑल अबाउट माइंड, हम किस लेवल पर किस तरह से अपनी चीजों को अपने माइंड में बिठा रहे हैं, इट इज इंपॉर्टेंट ना। सो लेट्स वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 2, पॉसिबल डिजिट इज डन। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट हाउ मेनी डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स। अब एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 1024, 1024, सर यू आर टेकिंग अगेन सेम एग्जांपल। यस, बिकॉज 1024 को हम समझ रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू स्क्वायर रूट भी जान चुके हैं। तीसरी चीज, ये बड़ा नंबर भी है एंड हमारे और भी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है यहां पर, ठीक है ना। बिकॉज प्रॉब्लम सिर्फ यहीं पर आ जाती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स लेकर के चलते हैं, जिससे हम अपने आप को जस्टिफाई कभी कदार नहीं कर पाते। मतलब इवन वो सही तो होता है, बट अब एक बच्चा है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, सो एटलीस्ट उसको, अब हमने 1024 लिखा तो उसको पता है 32 is the square of 32's square is 1024. After finding the square root of 1024 we get 32, ठीक है। Then 1024 what is the possible unit digit, वो बता चुका है, इधर 2 और 8, तो उसने तुरंत क्लियर कर दिया होगा 2 होगा, that's the reason। okay, so now 1024 how many digit means, अगर हम 1024 को स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, so how many digit it contains, उसमें कितनी डिजिट्स होंगी। so what we will do, we will count the number of digits, so 1 2 3 4 and divided by 2, just cut it, you get the 2 digits। okay, now next 6 5 5 3 6, it's clear, another example and greater also। so how many digits it has, 1 2 3 4 5, it has 5 digits। so what we will do, we will add 1 and then divide, so it's become 6 divided by 2, 2 1 2, 2 3 6, means 3 digits। okay, are you getting this point or not, means when you find the square root of 6 5 5 3 6, आप 6 5 5 3 6 का स्क्वायर रूट जब फाइंड करेंगे तो उसमें आपको 3 डिजिट्स मिलेंगे। ऐसा क्वेश्चन भी आपके सामने होता है एग्जाम में,
ठीक है, नेक्स्ट, सो हाउ, रूल, मैथड, डिफरेंशियल जो भी देख लीजिए. इफ n is even, if n is even, if n is even, then we simply n by 2. ओके, इफ n is even, अगर n हमारा इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है 1 2 3 4, so no need to do anything, you have to just divide it by 2. okay, what will you do if the n is odd? if n is odd, अगर n odd हो रहा है तो n plus 1 by 2, it will give the digits of square root. okay, now move to the next point. sir, why you taught us? अच्छा, ये भी क्वेश्चन हो सकता है. yes, why not? so बिकॉज बेटा क्वेश्चन होता है हमारे एग्जाम में, और इस तरह के जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं 1 मार्क्स के एंड 1.5 और 2 मार्क्स के, फिर उन्होंने सब पार्ट्स दे दिए उसमें, तो ये बिगिनिंग में होते हैं. ठीक है, अब अगर आपसे बोलिए हाउ मेनी डिजिट इट हैज, हाउ मेनी डिजिट्स ऑफ अंडर रूट 6 5 5 3 6, अब अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप कितना समय लगाओगे? n plus 1 by 2 हो गया. यस, बस इतना ही लगना है. बट अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आप क्या करोगे? इधर यू हैव टू फॉलो द प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड. अब दो मेथड में से एक मेथड लगाओगे, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, स्क्वायर रूट आंसर आएगा, देन आप बताओगे स्क्वायर रूट में कितने डिजिट्स हैं, तब आप आंसर लिखोगे. टीचर आपको मार्क्स क्या 2 की जगह 4 दे देंगे. नाउ ठीक है, सो तो सर इसमें मार्क्स मिलेंगे? यस, इट इज अ रूल इन एनसीईआरटी. ओके, ये है और इसको फॉलो भी करना है. इट्स क्लियर? आई एम सर्चिंग माय मार्कर, वेयर इज इट गॉन? Okay, let's, no problem, I will search it later. So let's we move to the division method. How to find the, so same example, 65536, I'm going to find the square root of 65536 by division method. The square root of 65536 by division method. Okay, most important method, because यहां से जो वर्ड प्रॉब्लम आती है वो भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है. यस, सो यहां पर कैसी प्रॉब्लम होती है? व्हाट नंबर वी एडेड टू द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? व्हाट नंबर वी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर? कौन सा नंबर हम गिवन नंबर में ऐड करें ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर कौन सा नंबर हम गिवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? मींस एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली जब प्रॉब्लम आती है तो वो डिवीजन मेथड से होता है, और जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाली प्रॉब्लम आती है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से होता है. कीप इट इन योर माइंड ना. सो 65536, सो व्हाट वी विल डू? 65536, वी स्टार्ट टू मेक अ पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड. सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे. तो 6 हमारा इंडिविजुअल छूट गया, नो प्रॉब्लम. ओके, मींस लेफ्ट साइड में हमें 1 नंबर भी होगा तो डजंट मैटर, बट हम पेयरिंग स्टार्ट करेंगे राइट हैंड साइड से. ओके, सुना, 6, वी फाइंड द नंबर whose square is either less than 6 or equal to 6. अब हम वो नंबर फाइंड करेंगे जिसका स्क्वायर या तो 6 से बड़ा हो, सॉरी, या तो 6 से बराबर हो या 6 से छोटा हो. So 3 3s are 9, it's greater. So what we will do? We will take 2. 2 2s are 4. It's clear? Then what we do in subtraction? हम subtraction में क्या करते हैं? डिवीजन में क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन करते हैं. Don't confuse. Focus on the board. Now, so 6 minus 4 is 2. 5. No. This is a pair. तो अब हम यहाँ पेयर, पूरा पेयर कॉपी होगा नीचे, ठीक है ना, इंडिविजुअल नंबर नहीं आएगा. सो 5 and 5. Then what we will do? We'll add 2 here. 2 2 plus 4. Okay? ये बात समझ में आई ना? अब ये 2 जिस नंबर से हमने डिवाइड किया था, जिस नंबर का स्क्वायर निकाला, सेम नंबर हम ऐड करेंगे. ओके, सो 2 plus 2 become 4. ना अब 10th डिजिट पे हमें 4 मिल गया. हमें यूनिट डिजिट ऐसी सर्च करनी है जिसको सेम मल्टीप्लाई करें. 41 लिया तो 1 ही लेंगे,
42 हुआ तो ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, 49 लेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे. इट्स गेटिंग क्लियर और नॉट? मीन्स इट शुड बी सेम, ये सेम होना चाहिए. सो लेट्स वी मूव. सो आई एम गोइंग टू चेक 44. So 4. So 4 for just 16 can no 16 carry 1 for 16 117. Let's move to the one more. 45 by 5. 5 5 is 25 carry 2. 5 4 is 20 plus 2 22. 2 2 5. Let's check one more. 46 and 6. 6 is 36 carry 3. 6 4 is 24. It's greater. So no need to do this. We have to focus on this. So it should be 5. 5. Then what we get? 5 5 are 25 carry 2. I rubbed, that's why I'm going to multiply it again. 5 5 are 25 carry 2. 5 20 20. 2 to 5. Then again we subtract. Okay. 5 minus 5 0. 5 minus 2 3. Okay. 2 minus 2 0. No need to write 0. Then we copy this whole pair 36. Now which number I am going to multiply here? 5. So we add 5 here. That is 45 plus 5 is 50. Okay. One more thing most important. अगर आपको क्रॉस चेक करना हो किसी भी स्टेप पर, so the sum you written, जो आप सम लिखोगे ना, it should be twice of this. ये हमेशा होगा. अगर हम यहाँ की बात करें, यहाँ 2 था तो हमने कितना लिखा था? 2 2 is 4. ओके. अब यहाँ 25 हो गया. ये कितना हो गया? 25 इस स्टेप के बाद में. So it is 25 2 is 50. ये हमेशा ये जो नंबर ऐड होकर के आएगा, it must be twice of this. इसका हमेशा twice होगा. ओके. But no need to cross check. You have to just write 5 से हमने किया था 45 तो हमने उसको ऐड कर दिया. That's it. जिस नंबर का स्क्वायर हम लिखते हैं उसी नंबर को ऐड करके नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ जाते हैं. ओके. सो नाउ व्हिच नंबर आई एम गोइंग टू सेलेक्ट? फर्स्ट ऑफ ऑल, अच्छा अब दूसरी चीज, अब हमारे पास में इतना टाइम तो होता नहीं कि हम मल्टीप्लाई करते जाएं नहीं ना. सो लेट्स वी अप्रोच टू द डायरेक्टली टू द नियरेस्ट नंबर. हाउ? देखिए बेटा, अब हमें यहाँ पर कोई एक नंबर लेना होगा 1. ओके. देन 1 से करेंगे 1 1 1 आ रहा है, यहाँ पर नहीं आ रहा है. सो अब हम ये सोचेंगे कोई ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर फाइंड करने पे 6 यूनिट प्लेस पे आता हो. तो वो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है. यस, 4 हो सकता है. वेरी गुड. और देन क्या हो सकता है? 6 हो सकता है. तो हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे. ठीक है, बात समझ में आ रही है? 6 6 are 36 एंड 6 5 are 30. ओप्स, इट्स गेम. अगर हम ये करते तो फिर ना आता, फिर हम आगे बढ़ते. इट्स गेटिंग. सो अब हमें क्या मिल गया? 6. ना so 3 0 3 6 and cut it. Okay, it's getting clear. And then अब देखिए, अभी जो मैंने आपको क्रॉस चेक करके बताया ना कि after adding this it must be twice of this. So 256 twice करिए. 252 is 500 and 6 2 is 12. 512 is written. So it should be twice. So now आफ्टर शोइंग दिस वर्किंग, इस वर्किंग को शो करने के बाद में आप क्या लिखोगे? सो हेंस द स्क्वायर ऑफ 6 5 5 3 6 is equals to 256. It's clear? This is the way to find the square root of any number by division method. Okay, you can ask me your doubt on my WhatsApp number 9919333200. So thanks for watching the video.